Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Pacific Group of Colleges Multan campus. Today we will discuss the lecture number 14 of physics from the chapter number 6, fluid dynamics. Previously we have discussed the short questions of exercise. हमने जो हमारे सिलेबस के अंदर short questions included थे, all of the short questions I have discussed in the previous lecture. Today we will discuss about the numerical problems which are included in our syllabus. And these numericals are really very important which are included in our syllabus. बहुत बार ये जितने भी numericals हम discuss करेंगे, all of the numericals are discussed, all of the numericals are given somewhere in the board examination. कभी ना कभी किसी ना किसी बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर ये न्यूमेरिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तो आपको ये सब न्यूमेरिकल्स करने होंगे. These are all the numericals which are much important. Now let's discuss the first numerical of chapter 6. A certain globular protein particle has a density of 1246 kilogram per meter cube. It falls through the pure water with a terminal speed of 3 centimeter per hour. मतलब इतनी कम स्पीड है कि वो 3 सेंटीमीटर एक घंटे में गिरता है. हमें वो रेडियस ऑफ पार्टिकल फाइंड करना है. इट मीन्स वी आर प्रोवाइडेड द डेंसिटी of the particle, terminal velocity, and we have to find the radius of the particle. It means given data हमारे पास हो गया terminal velocity which is equal to 3.0 centimeter per hour. अब centimeter per hour को first of all you have to convert in meter per second. सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 100 से डिवाइड करना होगा. यहां पर और गिवन है, आपको इसे पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, 60 मल्टीप्लाई बाय 60 या फिर 3600 से डिवाइड करेंगे. हमारे पास एट द एंड आंसर जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू 8.33 into 10 raised to the power minus 6 meter per second. This is the terminal velocity which is provided to us, and the coefficient of viscosity is eta, and this eta is equal to 8.0 into 10 raised to the power minus 14 Newton per meter square second. यहां पर सेकंड लाजमी लगाइएगा. Newton per meter square second is the coefficient of viscosity which is given to us. और हमें डेंसिटी जो है ये दी हुई है 1246 किलोग्राम per meter cube, and we are interested in finding the terminal velocity, and Vt is the given by the formula previously we have discussed in the article. इसका formula हमने derive किया था, और formula क्या था, 2r square rho g या फिर 2gr square rho over 9 eta. What we are interested in finding, that is radius. तो r स्क्वायर को यही रहने दें, बाकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन कर ले. आपके सामने 9 ईटा वीटी ओवर 2 रो जी या 2g इंटू रो. 9 eta is 8 into 10 raised to the power minus 40. R square is on the left side which we have to find. Vt is 8.33 into 10 raised to the power minus 6. We have substituted the values of eta and Vt in nominator, और अब हम डिनोमिनेटर की तरफ चलते हैं. वो नीचे क्या है 2, फिर आपको क्या करना है, g की वैल्यू दैट इज 9.8, देन आपको क्या पुट करना है, रो की वैल्यू दैट इज 1246. जब आप ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, जो आंसर आएगा दैट विल बी 2.45 into 10 raised to the power minus 12. At the end you have to take the under root on both sides. Square root जब लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.56
into 10 raised to the power minus 6. This is the radius of what? This is the radius of the pipe. हमें radius of the particle, यही हमें radius ही find करना था. Now I'm moving towards the next numerical, and the next numerical is statement आपके सामने कि water flow करता है एक hose में से. A water flow through a hose. It is not house, it is hose. You must be aware, I have made a spell mistake in the statement. That is hose, not house. Water flow through a hose whose internal diameter is 1 centimeter. यानी एक डायमीटर इंटरनल होज का दे दिया गया 1 सेंटीमीटर, और पानी इधर से फ्लो करता है 1 मीटर पर सेकंड के हिसाब से. मतलब इनिशियल वेलोसिटी ये जो है, ये इस होज के इस नोजल से पानी जो फ्लो करता है वो 1 मीटर पर सेकंड के हिसाब से. डायमीटर इज गिवन टू अस, वेलोसिटी एट दिस होज point is given to us. उसके बाद वो कहते हैं what should be the diameter of the nozzle if the water emerge at 21 meter per second. आपको diameter बताना है दूसरी साइड का, जबकि वहां से पानी 21 मीटर पर सेकंड के हिसाब से फ्लो कर रहा है. गौर कीजिएगा, पहले वेलोसिटी कम है, अब वेलोसिटी ज्यादा है. अब वेलोसिटी ज्यादा, it means that the pressure will be less. From the velocity, from that point, the pressure through the nozzle will be less, because at the nozzle the speed of the water flow is more. अब check कीजिएगा, I'm going to solve it with the help of equation of continuity. Equation of continuity कहती है कि हमारे पास A1 V1 is equal to A2 V2. A1 will be equal to pi R1 square into pi R2 square V2. Pi R1 square V1 is equal to pi R2 square V2, because A1 will be equal to pi R1 square. क्योंकि यहां पर जब डायमीटर की बात होगी, इसका मतलब यह हुआ कि वो जो होज है वो सर्कुलर है, तो ऑब्वियसली सर्कुलर एंड का जो एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो इस फॉर्मूले की मदद से निकालते हैं. A1 इज इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर. इन द सेम वे A2 विल बी इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर. और हमने मालूम है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के मुताबिक A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2. A1 की वैल्यू पुट कर दी पाई R1 स्क्वायर V1 वैसे का वैसे, A2 की वैल्यू पुट करेंगे पाई R2 स्क्वायर, और आगे V2 वैसे का वैसे, यानी पाई R1 स्क्वायर V1 इज इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर V2. यू नो दैट यहां से पाई विल बी कैंसल्ड बाय पाई, बोथ साइड्स, लेफ्ट और राइट साइड पर पाई कॉमन है, तो पाई को हम कैंसिल कर देंगे, और हमें एट द एंड R1 की वैल्यू क्या है, 1 की वैल्यू आ गई d/2. क्योंकि रेडियस किसी भी क्रॉस सेक्शन का हो तो वो डायमीटर का हाफ होता है, यानी d/2 विल बी इक्वल टू रेडियस. R1 लिखेंगे तो d1/2 होल स्क्वायर, एंड R2 की जगह आप क्या लिखेंगे, d2/2 होल स्क्वायर. आगे इधर V1 है तो उधर V2 वैसे का वैसे आपका सस्टेन करेगा. एट दिस पोजीशन V2 विल सस्टेन. इससे आगे चलते हैं, यहां पर नीचे डिनोमिनेटर में 2 स्क्वायर, इधर भी डिनोमिनेटर में 2 स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर 4 से कैंसिल, बाकी जो बचेगा वो आपके पास होगा d1 स्क्वायर V1 इज इक्वल टू d2 स्क्वायर V2. हमें क्या निकालना है, हमें व्हाट शुड बी द डायमीटर ऑफ द नोजल, यानी हमें d2 फाइंड करना है, और d1 हमें गिवन था. d2 फाइंड करने के लिए d2 को यही रहने दें, V1 से डिवाइड करते हैं, आंसर आएगा आपके पास d1 स्क्वायर इज इक्वल टू d2 स्क्वायर इंटू V2 ओवर V1. आपने क्या किया, इसी इक्वेशन के अंदर V1 से डिवाइड कर दिया. एट द एंड आपने क्या लिया, अंडर रूट लिया. क्योंकि हमें सिंपली डायमीटर चाहिए तो आपको अंडर रूट लेना पड़ेगा दोनों अतराफ से. दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा d1 इंटू अंडर रूट ऑफ V1 ओवर V2. Whenever I will simplify by putting the values जो हमें गिवन डाटा के अंदर है, गिवन है, उन सारी वैल्यूज को जब हम पुट करते, d1 की जगह क्या पुट करेंगे, 0.01, दैट वाज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके पुट करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 0.01. इधर v1 की जगह क्या पुट करेंगे, 1, और v2 की जगह क्या पुट करेंगे, 21 मीटर पर सेकेंड. Then I will simplify it and I will get the answer
2 into 10 raised to the power minus 3, which must be equal to 0.2 centimeter. minus 3 को आप 0.2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं by making conversions, and these are very common conversions, आपको पहले से ही मालूम है. Now I'm moving towards the next numerical, and the next numerical is 6.4. 6.4 numerical में गौर कीजिएगा. Water is flowing smoothly through a closed pipe system. At one end, the speed of water is 3 meter per second, while at the other end it is equal to 3.0, मतलब while another end is 3.0 meter higher. V1 आपको given है, एक एंड पर जो पानी की स्पीड है दैट इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड. दूसरे एंड पर जो स्पीड है वो आपको दे दी गई, उसने दिया 4.0 मीटर पर सेकेंड. 3 मीटर हायर है अदर एंड, मतलब जहां पर स्पीड आपकी जो है वो है 3 मीटर पर सेकेंड, वहां पर कितना हायर है पाइप? 3 मीटर हायर, यानी H1 इज इक्वल टू 3 मीटर और H2 इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू 0 मीटर. यानी दूसरा एंड आपका जो है वो एग्जैक्ट स्पेस पर या फिर ग्राउंड पर लाया करता है. अब गौर कीजिएगा, प्रेशर एक एंड पर, द प्रेशर एट द लोअर पॉइंट यानी P2 इज गिवन टू अस, लोअर पॉइंट इज लाइंग एट द ग्राउंड. इस तरह से पाइप है तो लोअर पॉइंट आपका एग्जैक्ट ग्राउंड के ऊपर मौजूद है. अपर पॉइंट की जो हाइट है वो आपकी जमीन से तकरीबन इस पॉइंट की हाइट, ये लेट से यहां पर जमीन है, लोअर पॉइंट जो है वो, ये जो लोअर पॉइंट है पाइप का ये एग्जैक्ट अर्थ के ऊपर मौजूद है. लोअर पॉइंट इज अवेलेबल एट अर्थ while the other point is upper point and that is available at the distance of 3 meter. इस पॉइंट पर प्रेशर क्या है? इस पॉइंट पर प्रेशर आपको गिवन है, लोअर पॉइंट पर प्रेशर आपको गिवन है and that is equal to 80 किलो पास्कल. What is the pressure at the upper point? हमें वो प्रेशर मालूम करना है. Pressure at the upper point will be equal to P1. And P1 is the pressure which we have to find. We will do this, we will find the pressure at the upper end by using the Bernoulli's equation. और Bernoulli's equation क्या कहती है? Sum of pressure, potential energy per unit volume and kinetic energy per unit volume remains constant. यानी P1 plus rho g H1 plus 1 by 2 rho V1 square is equal to P2 plus rho g H2 plus 1 by 2 rho V2 square. ये दोनों बराबर हैं. हमें मालूम क्या करना है? हमें मालूम करना है P1. P1 यही रहने दे, बाकी ये जो दो वैल्यूज हैं ये P rho g H1 और 1 by 2 rho V1 square, both of these will be shifted on the right side of the equation. Whenever I will shift it, यहां पर P2 वैसे का वैसे सस्टेन करेगा. रो जी H1 जब इक्वेशन की राइट साइड पर आएगा तो आपके पास रो जी इंटू H2 माइनस H1, बड़ी आसानी से आप इस एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन से रो जी कॉमन ले सकते हैं. आई हैव हाईलाइटेड द एक्सप्रेशंस. आप इन दोनों एक्सप्रेशन से रो जी कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा H2 माइनस H1 और इधर आप गौर कीजिए ये 1 by 2 रो V1 स्क्वायर है, उधर 1 by 2 रो V2 स्क्वायर है. यू कैन टेक 1 by 2 रो कॉमन और अंदर बचेगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर. एट द एंड आप वैल्यूज पुट करेंगे. P2 आपको गिवन है 80 किलो पास्कल, इट मीन 80 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to the power 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. रो की वैल्यू आपको पानी की डेंसिटी मालूम है 1000 किलोग्राम per meter cube. H2, what is H2? Is 0 because the lower end is available at the earth और upper end is available at 3 meter. तो आप लिखेंगे 0 minus 3, तो at the end आंसर तो आपके पास -3 ही आएगा. उसके बाद आपके पास क्या चीज आएगी? गौर कीजिएगा 1 by 2 रो. 1 by 2 रो is 1000. आगे V2 square minus V1 square. What is V2? It is a 3 meter per second whole square. What is V1? It is equal to 4 meter per second whole square. And we have to find the pressure. Pressure आपके सामने गौर कीजिएगा 80,000 minus 29,400 आगे minus 3,500. Whenever I will find out the pressure,
I will get the value is equal to 47,100 which must be equal to, अगर इसको किलो पास्कल में लिखें तो किलो पास्कल में आपके पास जो प्रेशर आएगा that will be equal to 47.1 किलो पास्कल. This is the pressure जो हमें फाइंड करना था. नेक्स्ट में चलता हूं न्यूमेरिकल नंबर 4.5 के ऊपर. अ वेरी सिंपल एंड वेरी इजी न्यूमेरिकल. एक एरोप्लेन है, उसको डिजाइन किया गया. एरोप्लेन विंग इज डिजाइन सो दैट when the speed of air across the top of the wing is 450 मीटर पर सेकेंड. विंग के ऊपर की स्पीड ज्यादा है तो मतलब विंग के ऊपर का प्रेशर कम होगा और विंग के नीचे जो स्पीड है वो जो है 410 मीटर पर सेकेंड, मतलब नीचे प्रेशर ज्यादा होगा. व्हाट इज द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टॉप एंड बॉटम. बॉटम और टॉप का प्रेशर डिफरेंस बताएं. अगर बॉटम पर आप प्रेशर लेते हैं, गौर कीजिएगा, यहां पर हमें टॉप और बॉटम का प्रेशर निकालना है, प्रेशर डिफरेंस निकालना है, तो आप डायरेक्टली स्पीड और प्रेशर का जो डिफरेंस है उसकी इक्वेशन यूज कर सकते हैं. और आपको ये मैंने आर्टिकल पढ़ाया भी है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड प्रेशर. तो वो प्रेशर डिफरेंस कैसे निकाला था हमने. P2 माइनस P1 इज इक्वल टू 1/2 रो इंटू V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर. व्हाट इज V1? It is the speed at upper end and that is equal to 450. What is the speed at lower end? It is equal to 410. और P2 माइनस P1 ये प्रेशर डिफरेंस हमें फाइंड करना है. तो बच्चे P2 माइनस P1 को इक्वेशन की लेफ्ट साइड पर रहने दें और एयर की डेंसिटी उसने हमें दे दी. एयर की डेंसिटी हमें दी 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. आप एयर की डेंसिटी की वैल्यू पुट करें, V1 की वैल्यू पुट करें, दैट इज इक्वल टू 450 and V2 की वैल्यू पुट करें, that is equal to 410 and then at the end simplify this. Simplify करने के बाद with the help of calculator you can easily simplify it and you will get the answer equal to 22,188 Pascal, 22,188 Pascal, and you can write it 22.1 kilopascal. Now I'm moving towards 6.9, the last numerical of this chapter. What gauge pressure is required in the city mains for the stream of a fire hose connected to the mains to reach the vertical height of 15. मतलब हमें height दे दी and that is equal to 15 मीटर. मतलब अब आपको काइनेटिक एनर्जी को खत्म करना होगा. क्योंकि V1 और V2 बराबर हैं. जब V1 और V2 बराबर हैं हमने सिर्फ और सिर्फ प्रेशर डिफरेंस फाइंड करना है and this pressure difference could be found in this case could be found with the help of Bernoulli's theorem, Bernoulli's equation. V1 और V2 जब बराबर हो गए तो ये गौर कीजिएगा, क्योंकि सिटी मेंस के अंदर जो टोटल पानी की स्पीड होती है वो बराबर होती है, हर तरफ बराबर होती है. इस वजह से V1 और V2 ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों एक्सप्रेशन इस इक्वेशन से खत्म हो जाएंगे. 1/2 रो V1 स्क्वायर इज 1/2 रो V2 स्क्वायर. बोथ ऑफ दीज एक्सप्रेशन विल बी कैंसल्ड एंड वी विल गेट P1 plus rho g H1 is equal to P2 plus rho g H2. आप rho g H1 को इक्वेशन की राइट साइड पर शिफ्ट करें और P2 को इक्वेशन की लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करें. We will get P1 minus P2 is equal to rho g into H2 minus H1. अब rho की वैल्यू क्या है? 1000. H यहां पर G की वैल्यू है बिकॉज इट इज वाटर, देयरफॉर रो की वैल्यू तो ऑब्वियसली 1000 ही होगी और G की वैल्यू 9.8. H2 माइनस H1 टोटल हाइट उसने दे दी हमें एंड दैट इज इक्वल टू 15 मीटर. 15 मीटर ये आप H2 माइनस H1 बोथ प्लेस की जगह पे आप दोनों हाइट का डिफरेंस जो है ये टोटल हमें 15 दिया गया तो 15 ही पुट कर देंगे आप. यानी ये H1 जो है वो 0, H2 जो है वो आपके पास 15 है. मतलब ग्राउंड से आपने भेजना है, स्ट्रीम ऑफ उसको वाटर को ग्राउंड से आपने भेजना है. अब 15 मीटर H2 माइनस H1, whenever I will simplify it, I will get the answer 147,000 Newton per meter square या फिर Pascal. It can be written as 1.47 into 10 raised to the power 5 Pascal. इसको किलो पास्कल में लिखेंगे तो 147 किलो पास्कल. These are all the numericals of chapter number 6 which we have discussed today. Hopefully आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे और इजीली इस चीज को नोट डाउन भी कर लेंगे. इंशाल्लाह I will start chapter number 7 in my next lecture. So तब तक के लिए इतना ही. खुदा हाफिज.